students, I Samar Firdaus, guest lecturer of Electronics and Telecommunication Department. Today's lecture video class contain the topic about the latch. Before going to latch, we know about the difference between the combinational circuit and sequential circuit. So basic difference between the combinational circuit and the sequential circuit is memory. In combinational circuit, the output is only depend on the present value of inputs. So this is the combinational circuit. Here I am giving the input 1 and 0, and this combinational circuit is adder. So output is sum and carry. If we add 1 and 0, sum is 1 and carry is 0. So there is output depend only on the present value of input, but in sequential circuit, output depend on the present value of input as well as the past value of output. For example, there is a counter. Count the 0 to 9. This is the decimal digit. We all know how counter counts the digits. 0 plus 1 gives to 1, and this output again add into the next series, that is 1 plus 1 equal to 1, 2. And this 2 is again add with the 1, and that is 3. If we get 8, then previous output is 7, add with the 1 and we get the output 8. तो इससे कंक्लूजन हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को अगर काउंटर में काउंट करना है कोई भी नंबर को, तो वो क्या करेगा ना, जो भी हम लोग का प्रीवियस आउटपुट स्टोर हुआ होगा, कहाँ पे हुआ होगा स्टोर? वो मेमोरी में. तो वो आउटपुट हमेशा ऐड होगा नेक्स्ट नंबर के साथ. तो यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोगों को जो प्रेजेंट इनपुट दिए एंड हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट को एक हम लोगों को स्टोरेज एलिमेंट में स्टोर करके रखना होगा. तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोगों को लगेगा वो होगा हम लोगों का मेमोरी. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, हम लोगों को पास्ट आउटपुट नहीं चाहिए, जो प्रेजेंट इनपुट देते हैं उसी को वो ऐड करके सम एंड कैरी मुझे मिलेगा, या मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है. लेकिन इन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है ना, हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा एंड वो प्रीवियस आउटपुट जो भी आया होगा उसको वो मेमोरी से ले करके फर्दर इनपुट एज ए इनपुट वो लेगा एंड आउटपुट में वो शो करेगा. So this is the basic difference between the combinational circuit and sequential circuit. So latch is nothing but a basic storage element. As the name it suggests, it holds or latches the digits, that is 0 and 1. Here I am taking the SR latch. SR latch is of two types, using NOR gate and using NAND gate. So here I draw the basic logic circuit of SR latch using the NOR gate.
This is the feedback path for the NOR gate 1 and NOR gate number 2. Input is S and out. Both the inputs are S and R and the output is Q and Q bar. यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा एक दूसरे का. सपोज ये मेरा आउटपुट 0 आया Q, तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1. S स्टैंड फॉर सेट. That means in digital, set means one, and R stand for reset. Reset in digital stands to 0. So I am taking the truth table of NOR gate because here I am using the SR latch using NOR gate. We have already studied about the truth table of NOR gate, that is input is A and B and output is A plus B row का whole bar. 0 0 0 1 1 0 1 1. Here total possible combination is 4. In NOR gate 0 0 we will get the output 1, 0 1 is 0, 1 0 is 0, 1 1 is 0. So from the truth table we conclude that if any one of the input is 1, then we will get the output is 0. So there is one conclusion, if we will get one input that is 1, then output is 0. So there is 4 cases. Here I am taking the case number 1, that is S is equal to 0 and R is equal to 1. S is equal to 0 and R equal to 1. So from the NOR to truth table, if any one of the input is 1, then output is 0. And this 0 is further fed into the NOR gate number 1 as a input. So 0 0 in NOR truth table we will get the output 1. So from the case number 1, that is S equal to 0 and R equal to 1, we will get the output Q equal to 1 and Q bar is 0. So this output is complement of each other. Now we will take the another input, that is S equal to 0 and R is equal to 0. Then what we will get the output? अभी हम लोग क्या किए हैं ना, S इक्वल टू 0 लिए एंड R इज इक्वल टू 0 लिए. तो अब हमें तो NOR गेट ट्रुथ टेबल से पता नहीं, अगर एक इनपुट हमारा 0 होगा तो मुझे दूसरा इनपुट जानना यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है. तो वो दूसरा इनपुट मुझे कैसे पता चलेगा? इससे पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा
तो वो वाला जो आउटपुट है ये जाकर के कहाँ पे स्टोर होगा, हम लोगों का मेमोरी में स्टोर होगा। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा वहां से हम लोग को प्रीवियस आउटपुट मिल जाएगा। तो वो आउटपुट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उस एज ए फीडबैक लेकर के यहाँ पे हम लोग इनपुट में डालेंगे, तो हमें मिनिमम 2 इनपुट मिल गया, तो आउटपुट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे पहले ऑपरेशन हम लोग क्या किए थे, कंडीशन में 0 एंड 1 लिए थे, s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, तो आउटपुट मुझे मिला था 1 एंड 0 मिला था। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसी में से हम लोगों को जो प्रीवियस आउटपुट होगा उसको हम लोग फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा नॉर गेट नंबर 1 में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का आ गया 0 0, तो 0 0 हम लोगों का नॉर गेट में, नॉर ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1 हम लोगों का यहाँ आ गया नॉर गेट नंबर 2 में, तो 0 1 क्या हो जाएगा, हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है ना, कि जो भी ऑपरेशन इससे पहले हुआ था, अगर मैं 0 0 का कंडीशन लूं तो वापस से वही वाला आउटपुट को वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का 0 0 के कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, मेमोरी हो जाएगा, मतलब वो जो होल्ड करके जो भी डेटा था उससे पहले वो वाला को स्टोर किया। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देती हूँ, नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। ये SR लैच का ट्रुथ टेबल है। ये हो गया इनपुट हम लोगों का, ये आउटपुट एंड ये ऑपरेशन। जब हम लोग 0 0 लिए तो हम लोग को क्या मिला, आउटपुट 1 0 मिला। तो 1 हम लोगों का क्यू क्या आया, 1 आया। 1 का मतलब क्या होता है, हम लोगों का सेट होता है, q टेंड्स टू 1, मतलब हम लोगों का क्या हुआ, अभी ये सेट पोजीशन में है। तो अभी इसी कंडीशन में जब मैं 0 1 ली थी, तब मैं जब s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 ली, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑपरेशन क्या आया, जो प्रीवियस आउटपुट था वो उसी को शो कर दिया। तो मैं यहाँ पे मेमोरी लिख दी, जैसे प्रीवियस आउटपुट मेरा 1 0 था तो वो 1 0 लिया, ठीक है। तो ऑपरेशन में हम लोग क्या बोल देंगे, होल्ड बोल सकते हैं, अदरवाइज इट विल कॉल्ड एज लैच और मेमोरी। Going to the previous page, now I will take the second case, that is case number 2. S is equal to 1 and R is equal to 0. S equal to 1 and R is equal to 0. From the NOR truth table, we will get the output 0 when any one of the input is 1. So here NOR gate number 1 having the input 1, so output is 0. No need to go to the second input. So this 0 is coming to the NOR gate number 2, so 0 0 is from the NOR truth table 1. So the output is 0 1 when the input is S equal to 1 and R is equal to 0. Q is 0 and Q bar is 1. Q set to 0 means it is reset. Now
going to the same case, that is case number 2, that is s equal to 1 and r equal to 0, we will take the another input, that is s equal to 0 and r is equal to 0. तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, सेकेंड इनपुट जानना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को नॉर गेट में क्या है पता नहीं कि मुझे क्या मिलेगा अगर इनपुट 0 दूंगी तो इससे पहला ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म किए थे, 1 एंड 0 का किए थे, तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिला था, 0 एंड 1 मिला. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इनपुट इज अगेन गिवन टू दी नॉर गेट नंबर 1 as a input, that is 1. So 0 1 from the NOR gate we will get the 0. So output is 0 and this 0 is further fed into the NOR gate number 2, that is 0 0 0 0 equal to 1. So we will get the same output. Same output means 1 0. अगर मैं ली 1 0 इनपुट तो मुझे आउटपुट 0 1 मिला. उसी केस में अगर मैं 0 0 ली तो मुझे क्या मिल रहा है, जो मेमोरी में स्टोर था वही वापस से 0 1 मिल रहा है. तो इससे क्या मुझे कंक्लूजन मिला, अगर मैं 0 0 लेती हूं, अगर मैं s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 0 ले रही हूं, तो इससे पहले ऑपरेशन जो भी हुआ होगा वो ऑपरेशन का आउटपुट जो आया होगा वो उस ऑपरेशन में उसी आउटपुट को शो करेगा. Now going to the last case, that is s equal to 1. Case number 3, that is s is equal to 1 and r is equal to 1. अगर हमारा इनपुट s से एक भी इनपुट 1 होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है ना, ट्रुथ टेबल से ये नहीं पता चल रहा है अगर एक इनपुट हमारे पास 1 हो तो मुझे दूसरा इनपुट जानना बाउंड है. तो उसके लिए क्या करना होगा, सॉरी, अगर मेरा दोनों इनपुट 0 है तो मुझे दूसरा इनपुट जानना बाउंड है. बट यहाँ पे केस क्या है, हम लोगों का s इक्वल टू 1 है एंड r इक्वल टू 1 है. तो अगर s और r 1 दोनों होता है तो हम लोगों को मालूम है फ्रॉम दी नॉट ट्रुथ टेबल, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0. तो आउटपुट यहाँ बेसिकली हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. उसी तरह नेक्स्ट केस में हम लोगों का r 0 है तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि इनवैलिड होगा, क्योंकि अगर आउटपुट एक हमारे पास q है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है. अगर हमें ये क्या बोलते हैं 0 मिला है तो नेक्स्ट मुझे 1 मिलना चाहिए. तो ये केस में मैं क्या बोल सकती हूँ ना कि 1 1 केस में जो हम लोगों का हो जाएगा नॉट यूज्ड बोल सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का इनवैलिड कंडीशन. तो हम लोगों को क्या मिला एसआर गेट से, एसआर लैच से, क्या हम लोग एसआर ट्रुथ टेबल लिए तो वहां पे हम लोगों का 4 कंडीशन आया, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो 0 0 में हम लोगों का क्या हो जा रहा था ना, मेमोरी हो जा रहा था, मतलब इससे पहले वाला ऑपरेशन जो परफॉर्म किए थे वो उसी आउटपुट को शो कर रहा था. नेक्स्ट हम लोग को 0 1 में आउटपुट 1 0 मिला. 1 मीन्स q सेट टू 1 मीन्स सेट, एंड 1 0 में क्या मिला, 0 1 मिला, तो वो रीसेट हो गया. 1 1 में क्या हो रहा, हम लोगों का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा. उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नेक्स्ट लैच को अगर हम लोग करेंगे यूजिंग लैंड, तो अब हम लोग देखते हैं यूजिंग लैंड ऑपरेशन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा.
अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं SR लैच यूजिंग NAND. Here I am draw the truth table of 2 input NAND gate. 2 input, that is AB, and output is A dot B का होल बार 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो 0 0 हम लोगों का क्या होगा, NAND गेट में 1 होगा, 0 1 हम लोगों का 1 होगा, 1 0 क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 होगा, 1 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा. तो ये हम लोगों का हो गया NAND गेट का ट्रुथ टेबल. तो हम लोगों को SR लैच जो करना है यूजिंग NAND या NOR, अगर NOR करना है तो मुझे NOR का ट्रुथ टेबल फॉलो करना होगा, अगर मुझे NAND का करना है तो NAND का ट्रुथ टेबल फॉलो करना पड़ेगा. तो केस नंबर 1 मैं अगर लूं तो S इक्वल टू मैं लेती हूं 0 एंड R इक्वल टू 1. From the truth table of NAND gate, we will see the output is 1 when the any one of the input is 0. Here the NAND gate number 1 having the input 0, so we will easily get the output that is 1, and this one is again fed into the NAND gate number 2, so 1 1 is 0 according to the NAND gate truth table. So in next page I will draw the truth table of SR latch using NAND. Input is S, R, output is Q, Q bar, and here we will see the operation. Combination is 0 0 0 1 1 0 1 1. From the case number 1 we will get the output 1 0 when input is 0 1. Input is 0 1, then output is 1 0. 1 means set. Here Q tends to 1 means set condition. Now going to the previous page, that is in case number 1 we will get the output 1 0 when input is 0 1. Now I will take the input S equal to 0 and R equal to 0. तो हमें क्या पता है NAND गेट के ट्रुथ टेबल से, अगर कोई भी एक इनपुट हम लोगों का 0 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है. तो यहाँ पे अगर ये 0 है तो आउटपुट 1 आ गया, एंड हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 0 है तो आउटपुट क्या आ गया, हम लोगों का 1 आ गया. तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, हम लोगों का इनवैलिड हो जा रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर नहीं है. नाउ गोइंग टू द केस नंबर 2, दैट इज S इक्वल टू 1 एंड R equal to 0. S equal to 1 and R equal to 0. From the NAND gate truth table, any one of the input is 0, then output is 1. So here the input is 0, then output is, any one of the input is 0, then output is 1, and this one is further fed into the NAND gate number 1, that is 1 1 is 0.
So here the output is 0 when s equal to 1, that is output is q, and q bar is the complement of that state, that is 1. तो हम लोगों को 1 0 में क्या मिला, 0 1 मिला, तो q हम लोगों का क्या है, 0 है, तो ये हम लोगों का रीसेट हो जाएगा, रीसेट कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट कंडीशन को जाते हैं 1 1 को, केस नंबर 3 में। s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1। तो हम लोगों का क्या होता है, अगर s1 है r1 है, तो हम लोग को नैंड गेट से अगर एक इनपुट 1 होता है तो मुझे क्या है ना, दूसरा इनपुट जानना है, तो वो हम लोगों को क्या होगा, इससे पहले ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ होगा उसका आउटपुट को वो एज ए इनपुट लेगा। तो इससे पहले जो भी ऑपरेशन हुआ उसका आउटपुट हमारे पास 0 एंड 1 आया, ये 0 हम लोगों का यहाँ आ गया, तो 0 1 का आउटपुट हम को क्या मिलता है, 1 मिलता है according to the NAND truth table, and this one is further fed into the NAND gate number 1 and 1 1 gives rise to 0, so output is 0। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, जो हम लोग आउटपुट प्रीवियस आउटपुट मिला था वही मुझे वापस से यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल में 1 1 में कर सकते हैं मेमोरी, और क्यू बार लिख सकते हैं, मतलब जो ऑपरेशन इससे पहले हुआ था उसी का आउटपुट को वो शो करेगा। तो ये हो गया लैच और होल्ड, ठीक, लैच होल्ड और मेमोरी। एंड फॉर दिस कंडीशन इज नॉट यूज्ड बिकॉज दिस इज इनवैलिड कंडीशन, बिकॉज बोथ द आउटपुट इज सेम। हम लोगों का होना क्या चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए था, क्योंकि एक आउटपुट मेरा क्यू है तो दूसरा क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस और अनदर इनपुट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है ना, कि मैं एसआर लैच में 2 ऑपरेशन परफॉर्म की यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो ये क्या हुआ, हम लोगों का केस नंबर 1 2 3 हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो यहां से क्या पता चल रहा है ना, हम लोग जो भी इनपुट दे रहे हैं आउटपुट क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। अगर मैं 0 1 दी 1 0 मिला, 1 0 दी 0 1 मिला, तो हम लोगों को क्या होगा, सर्किट को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक यूज करना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लॉक अगर मैं लगाती हूँ तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द latches using the NOR gate and NAND gate, and we have discussed how this circuit operates or how we can analyze by using the NOR gate and NAND gate in latches. So this all about the latch circuit. Thank you.